Hello everyone, welcome back to Crack That. This is Priyasha Das, and finally, we are here where we are just 30 days away from the CAT examination, and मात्र 72 days बचे हैं for the ZAT examination as well. And किसी भी average normal aspirant की तरह जो कि multiple exams दे रहा है, if you are also the one who is planning to give CAT, ZAT both, along with some other handful of entrance examinations, then this video is for you. And just a small intro, I am an alumni of XLRI, so I would be helping you in guiding you through this entire strategy. Well, मैंने एक post भी डाला था recently जिसपे सबसे ज़्यादा comments है regarding having some strategy और marathon videos, तो वो तो ज़रूर आ जाएंगे, but this is just a warm up session to tell you people how important it is to know that अभी time start हो गया है when you need to get serious about the things around you, because if you are not serious now, फिर मुझसे मत पूछना can I crack cat in the remaining dash number of days. So let's get started with this video. इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगी क्योंकि इस वीडियो में मैं अल्टीमेटली वही बातें कर रही हूँ जो मैंने पहले भी वीडियोस में कही हैं, एंड ये बहुत पुरानी वीडियोस की बात नहीं है. दिस इज टेक्निकली द वीडियोस व्हिच आई हैव रिसेंटली मेड ओवर द पास्ट 1 month or something. So please go and refer to those videos to get a detailed insight on what and how you should do in the next coming 30 days for CAT and the remaining 42 days for ZAT. And कोई भी aspirant including myself, मैंने कैसे prepare किया था for the first 30 days of CAT, एंड कैट खत्म करने के बाद हाउ आई शिफ्टेड माई प्रिपरेशन टू ज़ैट. कैट के प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैंने साइमल्टेनियसली ऐसे कौन से टॉपिक्स क्लियर किए थे so that they would work for both the examinations is what we're going to talk about today. Okay, so let's get started. So firstly we will move on the focus areas, guys. यहाँ पर हम सभी को पता है कि क्वांट इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो कि दोनों एग्जाम्स में ऑलमोस्ट एक बराबर का आता है. So therefore you can definitely work on those basics, and in the marathon classes I would love to take some very different और unique in itself questions जो कि एग्जाम के लेवल के होंगे, and we will be solving them in the class itself so that you can understand what's the right approach, because ऐसे examinations में it's very important for you to know that what is the right method of solving it rather than just knowing the solution. Because क्या होता है ना, एग्जाम में it's not about the same question, it's about knowing the process so that you can solve a similar question. So अगर हम पहले 30 days का टारगेट सेट करते हैं which will be the topics of CAT specifically, है ना, उसमें कोशिश कीजिएगा that you cover up the common topics which will be expected to come in this that exams as well. अब वो टॉपिक्स कौन से होंगे, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही डाल दिया था, तो उसका लिंक मैं बायो में दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो एंड चेक दैट. छोटी सी वीडियो है बट काफी इफेक्टिव है. You know, when you have very less time left, it's utterly important for you to strategize and prioritize the topics accordingly. तो MBA is all about that only. मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है, बट अगर वो सही से प्रायोरिटाइज करे तो वो आउटपुट बाप लेवल का दे सकता है. एंड सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल एज वेल. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन पेपर. इट्स एक्सपेक्टेड कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ विथ मिनिमम एफर्ट्स. एंड उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो, समझो पेपर को, उसका वेटेज क्या है फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि आप जितना भी लिमिटेड टाइम है आपके पास उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर सको. सो लेट्स वर्क ऑन द क्वांट का टॉपिक्स व्हिच यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन. कम से कम दिन में 2 घंटे तो आपको निकालने ही होंगे फॉर वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स लाइक एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री. मैं पर टॉपिक 2 घंटे नहीं बोल रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एन ओवरऑल मिनिमम ऑफ 2 hours which I demand from you if you really want to crack the CAT examination in the next coming 30 days. फोकस आपका ऑफ कोर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एरिथमेटिक होना चाहिए. देन यू शुड फिक्स डाउन टू अलजेब्रा, बिकॉज अलजेब्रा का क्या है ना, वो एक बड़ी सखी सी टॉपिक है. सखी से समझते हैं उसको, यानी कि काफी फ्रेंडली टॉपिक है विच कम्स एंड गेट्स इनकॉपरेटेड इन एवरी क्वेश्चन पॉसिबल, है ना. वो कभी जाकर नंबर सिस्टम में घुस जाएगा, कभी जाके ज्योमेट्री में घुस जाएगा, तो इसीलिए अलजेब्रा को बहुत सीरियसली लेने का है. ऑलराइट, देन कम डाउन टू ज्योमेट्री. ऑफ कोर्स मॉडर्न में मैथ्स अगर आप बिल्कुल ही लाइफ में कभी नहीं सॉल्व किया है अभी तक तो आई वुड नॉट रेकमेंड, बट अगर थोड़ी बहुत अलजेब्रा आई मीन सॉरी मॉडर्न मैथ्स आती है जैसे कि प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, तो वो कर लेना, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली इफेक्टिव इन हेल्पिंग यू सॉल्व द DILR सेट्स एज वेल. नाउ कमिंग टू VARC. द VARC में तो सबको पता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बट लेट मी टेल यू दैट सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर
अंधों की तरह रिलाई मत कीजिए. You have to work on para jumbles, para summaries, because they are also going to come in the other entrance examinations, including that. And most importantly, the second most important topic after reading comprehension in VARC should be critical reasoning, क्योंकि critical reasoning है वो टॉपिक जो आपका दिमाग VARC में खोल देता है. दैट मीन्स अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग में अच्छे हो एंड आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन अजम्पशन, कंक्लूजन, तो आप क्या कर पाओगे, आरसीज भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. गॉट इट? सो देयरफॉर मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. उसके सिलेक्टिव वीडियोस का लिंक भी मैं हाईलाइटेड कमेंट में डाल दूंगी ताकि आपके पास सब कुछ आराम से पहुंच जाए. कमिंग डाउन टू DILR, तो भाई ये तो आपको पता है कि 1 से 2 सेट बन जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी हमें उसकी दम भर प्रैक्टिस करनी चाहिए. और इसके लिए मेरा एक रिकमेंडेशन होगा दैट यू फॉलो द 2:1 रूल. in case you feel that you're not able to solve the sets by yourself, please go and check the solution, understand the approach, but do not copy the numericals. That means once you see the solution or you see what approach they have taken, how they have started the question, then take your own pen and paper and scribble out the numbers yourself. Even though you know that you can actually divide 72 by 2 yourself, but still usko number pe us page or copy pe karo. You would realize the difference yourself, my buddy, in just 3 days if you do this. Okay, ट्रस्ट में ये प्रियाशा की टिप जरूर काम आएगी, क्योंकि इसने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे दूसरे मेंटीज को भी इक्वली हेल्प किया है. लोग मुझसे आप इस ट्रिक को यूज करने के बाद नेक्स्ट ही वीक में नेक्स्ट मेंटरशिप कॉल पे आके मुझे बताते हैं दैट हाउ इफेक्टिव दे फाउंड दिस. सो मेक श्योर यू डू दैट एज वेल. मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ डेज, दैट मीन्स जैसे ही कैट खत्म होता है comes the next 31 to 50 days का फेज, जो कि है ट्रांजिशन टू ज़ैट. नाउ इस बीच हो सकता है बहुत सारे लोग एनमैट स्नैप भी देंगे, तो उसके लिए मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा लॉजिकल रीजनिंग ना हमेशा से सब्जेक्ट एक्सपर्टीज रहा है. तो उसके लिए एक अलग से मैराथन तो आप लोगों के लिए डन पक्की है ना, वो XGMT वालों के भी बहुत काम आएगा. बट टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन टू ज़ैट, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट बिग एग्जाम, I would request all of you to start working on the DM sets seriously after 30 days. हो सकता है बहुत लोग कैट को लेकर ज्यादा सीरियस हो, जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है वो अभी से डीएम की तैयारी कर सकते हैं, बट जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, दैट इज देयर सेकंड ऑप्शन. उनके लिए 30 डेज के बाद भी डीएम स्टार्ट करना इज नॉट एट ऑल हार्मफुल, बट उसको सही तरीके से करना है. बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने PYQs पढ़ लिए एंड दैट्स ऑल, but that's not how you're supposed to analyze the PYQs. PYQs are nothing but case studies, guys. This is a set where आपको solution खुद से नहीं बताना है, आपको उनके solution को पढ़कर समझना है कि किस तरह के questions उनके according सही है, और सॉरी किस तरह के आंसर्स उनके अकॉर्डिंग सही है. So after you do that analysis properly, only then you can say that you have mastered the decision making section. Again, decision making का playlist पूरे YouTube में मुझसे अच्छा किसी का नहीं है, ये मैं proudly कह सकती हूँ. ये बहुत सारे teachers ने भी खुद ही कहा है that they really like the way I explain it. So I hope you would also like it. If you haven't seen that yet, उसका भी link description box में होगा. Now coming to this general knowledge का तो भाई आपको पता ही है. यू पीपल डोंट टेक दैट सीरियसली, यू नो, यू थिंक दैट ओके जनरल नॉलेज का क्या है, वो तो हमारे परसेंटाइल में नहीं आने वाला. बट जो लोग सिर्फ परसेंटाइल लाने के लिए ये एग्जाम दे रहे हैं, आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो. बट जिनको ये एग्जाम देकर कॉलेज कन्वर्ट भी करना है, उनके लिए जीके उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई भी अदर सेक्शन. अब चाहे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जैट की, ultimately if you have to go into your best B school, then you know that current affairs is something which you will always need to be good at. And therefore current affairs की तैयारी अभी से करना, even though you're not even giving that, is very very important. And then comes mock tests. So आपके जो serious mock tests हैं, जो कि specifically ZAT के full length mock tests हैं जिससे भी आपने purchase किए हैं, वो आप start कर दो देना after CAT is over. Okay? अगर आप अभी के first 30 days में ZAT का कोई mock नहीं भी देते हो, वो completely fine है. बट अगर आप सचमुच सीरियस हो जैट को लेकर, तो आप यू नो वंस इन एवरी 10 डेज, यानी 30 डेज के पीरियड में 3 फुल लेंथ मॉक्स जैट की भी लगा सकते हो. डिपेंड्स ऑन हाउ इम्पोर्टेंट जैट इज फॉर यू. कमिंग टू 46 to 72 डेज का पीरियड, दैट इज द लास्ट स्प्रिंट फॉर अस, जहां पर आपको मॉक्स देने हैं, फाइनल रिविजन करना है. तो इसमें एक सेक्टर मैंने ऐड किया है ऐसे राइटिंग का. अब आप बोलोगे कि अभी के नए पैटर्न के हिसाब से तो हमें एग्जाम्स में ऐसे लिखने ही नहीं है, देन क्यों लोड लेना.
वेल दिस लोड इज इम्पॉर्टेंट अगेन विद द सेम रीजन दैट अगर जिस तरह से जीके है जो कि एग्जाम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग इनटू द बी स्कूल, just like that essays are also important for the people who are not even planning to give or get into XLRI. यानी कि मैं इसकी बात कर रही हूँ एसओपी राइटिंग के स्किल्स बिल्डअप करने के लिए. एनी कॉलेज यू गो इन यू हैव टू राइट एन एसओपी फॉर योर सेल्फ. यू हैव टू बिल्ड अप पॉइंट्स फॉर योर जीडी और योर वैट राउंड. तो उस सब चीज के लिए पॉइंट डेवलप करने की स्किल आपको तभी मिलेगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे. और वो प्रैक्टिस आप बाद में क्यों करोगे? इमेजिन अ पर्सन who starts preparing for the VAT round, GDPI round after their examination or results are out. आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम होगा. बट द पीपल हु स्टार्ट प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड, यानी अभी प्रिपरेशन के साथ प्रिपेयर कर लोगे तो क्या आपका कोई नुकसान हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, बिकॉज दिस स्किल इज अ सॉफ्ट स्किल विच यू शुड डेफिनेटली हैव इवन इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू डू एमबीए एट ऑल. क्योंकि अपने थॉट्स को वर्ड्स में आर्टिकुलेट करना is a very very needed skill in any domain you plan to work for. So therefore this is a must thing to do. And इसे आप actually अपनी side और past time activity बना सकते हो कि जब पढ़ पढ़ के थक गए तो रीले देखने की जगह ये करना बेटर ऑप्शन है. एंड इसका कुछ सजेस्टिव टॉपिक्स देखना चाहते हो जो कि पहले लोगों ने ऑलरेडी मेरे ग्रुप में डाली हैं और उन पर मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया है, लाइक ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको बेटर कर सकते हैं. तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अगर अपनी राइटिंग्स मुझसे चेक भी करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, है ना. एंड वन फाइनल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, दैट वन फाइनल थिंग इज कि आप अपने एग्जाम में कुछ चीजों पर बहुत ध्यान दो. जैसे कि एग्जाम में आपको काम और फोकस्ड रहना है. एंड दैट कैन नॉट हैपन जस्ट इन वन डे गाइस. फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस सो हार्ड दैट आपके लिए एग्जाम वाला डे भी बस एक मॉक के डे की तरह रहे. सो उसके लिए बॉडीली प्रैक्टिसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जैसे कि 3 साढ़े 3 घंटे एक जगह बैठे रहने की प्रैक्टिस, एग्जाम में वो टाइम प्रेशर के बीच में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस. These are few very very basic things which will help your body and mind get trained and accommodate themselves to the exam like format. तो वो जो एंजाइटी है, वो जो एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम फियर है, वो सब कुछ चला जाएगा. एंड देन कम्स टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज बी इट जैट, बिकॉज क्या होता है कैट के बाद जब लोग जैट में ट्रांजिशन लेते हैं ना तो उनको लगता है कि काफी टाइम है हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू ईच क्वेश्चन. तो वहां पे वो गलती करते हैं टू टेक द लेजर कि अरे ठीक है कर लेंगे. ऐसा नहीं है. द क्वेश्चंस आर लेंदी इन नेचर इन दैट एज वेल, फॉर क्वांट स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. तो देयरफॉर आपको टाइम मैनेज करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक टेस्ट या सेक्शनल्स देने चाहिए, बिकॉज अंटिल अनलेस यू टेस्ट योरसेल्फ यू विल नेवर अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए मैं तो ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगी, बट आपका काम है कि उनसे प्रॉपरली नोट्स लेना. एंड डोंट रिलाई ऑन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स, बिकॉज वो दिमाग में जाने का परसेंटेज इज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट यू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ. तो वो हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है. एंड विद दिस कम्स माय वन लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, कमेंट करके मुझे बताना कि कौन से वीडियोस आपको पहले चाहिए ताकि मैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकूं. एंड बी रेडी फॉर द मैराथन सेशंस, बिकॉज ये सेशंस लंबे होंगे, बोरिंग होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पढ़ाई से रिलेटेड है. तो आप लोगों को तो बस चटमक चीजें देखनी है ना, अरे कोई मुझे अपनी कॉलेज दिखा दे, कोई मुझे अपना डे इन ऑफिस दिखा दे. बट यार ये सब से आगे बढ़ो, बी मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट अभी उन चीजों तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है. और पढ़ना तो किसी को अच्छा लगता नहीं है. तो इस बड़े से रिस्क को उठाते हुए मैं फिर भी पढ़ाई के वीडियोस बना रही हूँ, होपिंग दैट वो कुछ लोग जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो इससे बेनिफिट कर जाए. So make sure you help my channel by hitting that subscribe button if you haven't hit that yet, and share it with more and more people ताकि उन्हें पता तो चले कि कोई इतना कुछ फ्री में कर रहा है. So therefore meet you in the next video. Till then, take care and study really really hard. Okay, see ya.